وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور وہ لڑکی دلہن بنی بیٹھی میرے سامنے موجود تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میری شادی زبردستی کرائی گئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ نہ ہی میں تمہیں چاہتی ہوں اور نہ ہی میں تم سے کبھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شدید آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں اٹھا اور وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کرنے لگا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیسے امتحان میں تم نے مجھے ڈال دیا ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں اور معاشرے والوں کا بڑا ڈر تھا۔ میں چونکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایسی بات پر تو ہماری عزت کے جلوس نکل جاتے ہیں۔ مختلف سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھیں۔ آخر صبح ہو گئی۔ اگر یہ صبح اپنے گھر چلی گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ کیا پتہ یہ اپنے گھر والوں کو کیا کہہ دے کہ شاید میں نامرد ہوں اور شادی ختم کروا دی جائے۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ تو نہیں ہے، یہ میرے نکاح میں ہے، یہ میری بیگم ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اسے بات کرنا چاہی مگر میری عزت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس عورت کی منتیں ترلے کروں جس نے مجھے پہلی رات ہی یوں ٹھکرا دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح سے پہلے ہی مجھے بتا دیتی، میں یہ رشتہ خود ہی ختم کر دیتا اور بات یوں شادی تک نہ بڑھتی اور نہ ہی میری زندگی برباد ہوتی۔ میں تو ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی شادی پر لگا دی تھی۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل بھی نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد میری ساس کا فون آیا، بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے؟ تو میں نے کہا آنٹی میں آتا ہوں۔ میں فوری طور پر اپنی دلہن کو لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں پر بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیگم میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو کسی اجنبی کے ساتھ فون پر گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ میں نے بھی پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے اور وہ کون ہے جو اس کا عاشق ہے، جس کے بارے میں اس نے مجھے پہلی رات بتایا تھا۔ ایک بار تو میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس کا فون پر جو بھی عاشق تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5-6 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات کے وقت گھر آتا، کھانا باہر سے ہی کھاتا تھا۔ جب بھی گھر پر آتا وہ فون پر باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگی کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے تو بہت ہی کنٹرول تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات جو تم نے مجھے کچھ بتایا تھا وہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ دوستو یہ باتیں کر کے میں سو گیا۔ میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ پہلے تو مجھے اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ میری بیوی تو میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنی بیگم کو گھر میں تلاش کیا تو وہ کہیں نہیں ملی۔ مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ کہ میرا دماغ پھٹنے والا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے میری عزت کی کوئی لاج نہیں رکھی، لیکن پھر بھی میں نے خود کو پرسکون رکھا اور فوراً اس ہوٹل تک پہنچ گیا جہاں میرے دوست نے بتایا تھا کہ میری بیگم کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے آواز دے کر کہنے لگا چلو گھر چلو۔ ہم دونوں چپ چاپ گھر آ گئے۔ کمرے میں لا کر میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں، اور میں نے اس سے کہا اب اس گھر میں مزید ایک لمحہ بھی تمہیں میں برداشت نہیں کر سکتا اور فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن اس کی ماں کے گھر جاتے وقت میرا غصہ تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ میں نے دماغ سے کام لیا کہ اس وقت ان کے گھر والوں کو کیا بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔
लहाजा कुछ सोचकर फिर मैं एक होटल में गाड़ी ले गया जो सुबह देर तक खुला रहता था। पता नहीं हमें वहाँ कितना वक्त लगा, लेकिन जितना भी वक्त वहाँ लगा मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। वो खामोश नजरें झुकाए मेरे सामने बैठी थी। उसने भी कोई बात नहीं की और ना ही मैंने कोई बात छेड़ी। मैं सुबह होते ही उसे उसके मैके छोड़ आया। उसके बाद उसके घर वालों ने कोई फोन नहीं किया। मेरा ख्याल था कि शायद उसने अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया होगा और वो किस मुंह से मुझे फोन करते। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजरता गया और पता ही नहीं चला कि कैसे 4 साल का अरसा बीत गया। मैं गहरी सोच में बैठा हुआ था कि अब उसे तलाक दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की जगह शादी कर ले। इतनी सजा काफी थी उसके लिए। आखिर एक सख्त फैसला करके मैंने उसका नंबर डायल किया। उसने फौरन कॉल उठाई थी, जैसे मुद्दतों से वो किसी के फोन का इंतजार कर रही हो। मैंने सलाम करते बिना ही कोई बात सुने ही उसे कह दिया, मैं तुम्हें तलाक देकर मुकम्मल तौर पर आजाद करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से बस एक चीख की आवाज आई और कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे फोन उसके हाथ से गिर गया हो। मैं सोच में था कि न जाने क्या हो रहा है, तो फौरन उसकी छोटी बहन ने फोन उठा लिया और कहने लगी हेलो। तो मैंने उसकी आवाज पहचान ली। उसने सलाम के बाद बताया, जब से आप ही को यहाँ छोड़कर गए हैं उसने आज तक किसी से बात नहीं की। अब्बू कहते हैं कि शायद ये पागल हो गई है, इसलिए आप इसे हमारे घर छोड़ गए थे और कभी वापस लेने नहीं आए। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन फोन काट दिया और मैं भी बड़ा उदास हो गया कि अब उसे तलाक देना या ना देना कोई अहमियत नहीं रखता। वक्त मजीद गुजरता गया। मैंने भी दूसरी शादी कर ली और अल्लाह ताला ने एक प्यारा सा बेटा भी मुझे अता कर दिया। एक दिन मैं अपने ऑफिस से वापस आ रहा था कि सिग्नल पर खड़ी मेरी कार को पीछे से किसी ने टक्कर दे मारी। मैं गुस्से से नीचे उतरा तो किसी ने कार का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। मैंने गुस्से से उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं एकदम से रुक गया और सोचने लगा कि शायद मैंने इसे पहले कहीं देखा है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। खैर, मैं इन्हीं सोचों में था कि वो कार से बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा, आप आगे आगे चलिए, कहीं साइड पर कार लगा लें ताकि मैं आपके नुकसान की भरपाई कर सकूं। दोस्तों, मैं गाड़ी साइड पर ले गया। वो आदमी भी मेरे पीछे ही था। मैंने गाड़ी रोकी, वो भी आ गया और मुझे पहचानते हुए मेरी पहली बीवी को भाभी कहकर उसका अहवाल पूछने लगा। मुझे एकदम से झटका सा लगा और मुझे सब कुछ याद आने लगा। दोस्तों, ये वही आदमी था जिसके साथ मैंने अपनी बीवी को होटल में पकड़ा था। मैंने बताया कि मैं उसे छोड़ चुका हूँ और मैंने दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, मेरी ये बातें सुनकर उस आदमी को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं भी उससे बहुत कुछ जानना चाहता था, इसलिए मैं उसे करीबी चाय वाले होटल पर ले गया। मैंने दोस्ती का बहाना बनाया और चाय का ऑर्डर कर दिया। उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो एक साइको किस्म की लड़की थी। वो मेरी क्लास फेलो थी। वो मुझे भाई समझती थी। हमारी ही क्लास के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी और उसके घर वालों ने उसकी शादी आपसे करवा दी। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस उम्मीद से थी कि उसका दोस्त अली उससे शादी करेगा और फिर वो आपसे तलाक ले लेगी। लेकिन आपसे शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अली से कतराने लगी। पहले वो उसके गुण गाते नहीं थकती थी, अब उसने अली से मुकम्मल तौर पर राब्ता खत्म कर दिया था। उस रात उसने मुझे होटल में बुलवाया था कि मेरा ये आखिरी पैगाम अली तक पहुंचा देना कि मैं आज के बाद उसे कभी नहीं मिलूंगी। मेरा शौहर बहुत अच्छा आदमी है। उसने ये सब जानने के बावजूद भी अभी तक मुझे तलाक नहीं दी और मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। यही बातें करने के लिए उसने मुझे होटल में बुलवाया था, क्योंकि मैं वाहिद जरिया था जो उन दोनों के पैगामात एक दूसरे को पहुंचाता था। जब हम बातें कर रहे थे तो तभी उस वक्त आप वहां पर आ गए और परेशानी के आलम में अपनी बेगम को लेकर वहां से चले गए। अगले दिन मैंने वो खत अली को दे दिया जो आपकी बीवी ने मुझे दिया था। खत पढ़कर अली ने खुदकुशी कर ली। मुझे खबर मिली तो मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। सबसे पहले उसकी जेब से मैंने वो खत निकाला,
क्योंकि मुझे शक था ये खत उसकी खुदकशी का सबब बन सकता है और अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो बात बहुत हद तक बढ़ जाएगी। उसकी तदफीन के बाद घर आकर मैंने वो खत पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, अली अब तो मेरा इंतजार खत्म कर दो और किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। मेरे शौहर के हुस्न सलूक ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं उन्हें मजीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे अपने शौहर से इश्क हो गया है। वो बहुत ही साबर, शाकर और हिम्मत वाले इंसान हैं। मैंने उनकी जिंदगी अजाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने आगे से मुझे कुछ नहीं कहा और हमेशा मुझे अपनी बीवी ही मानते रहे। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेपरवाहियों का अजाला करूं और मैं अपनी बेवफाई की उनसे माफी मांगना चाहती हूं। दोस्तों, मैं घंटों तक उसकी सारी बातें सुनता रहा और गुजरते वक्त को सोचता रहा। जाने किस वक्त घर पहुंच गया और मुझे पता भी नहीं चला। सुबह सुबह गाड़ी निकाली और उसके घर पहुंच गया। पूछने पर साली ने एक तरफ इशारा किया तो मैंने वहां देखा, जमीन पर बिखरे बाल, गंदे कपड़े। ऐसे लगता था जैसे उसने कई दिनों तक अपना चेहरा ही नहीं धोया। उसने पागलों की तरह जमीन पर लकीरें खींच रखी थी। मैं उसके करीब चला गया। मैंने करीब जाकर देखा तो उसने जमीन पर मेरा नाम लिखा हुआ था। कभी वो मेरा नाम लिखती और फिर उसे मिटा देती। मैंने जब उसे देखा और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाना चाहा तो वो फूट फूट कर चीखें मार मार कर रोने लगी। वो फौरन मुझे पहचान गई। वो सब कुछ समझ रही थी। वो पागल बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सब घर वाले उसे पागल ही समझ रहे थे। मैंने उसे उठाकर सहारा देते हुए अपनी गाड़ी तक ले आया और उसे मैंने गाड़ी में बिठा लिया और उनके घर वालों से कहा, मैं अपनी बेगम को लेने आया हूँ और अब ये मेरे साथ ही रहेगी। और मैं उसे सीधा अपने घर ले आया तो मेरी दूसरी बेगम ने देखा। वो तो ये मंजर देखकर और भी परेशान हो गई कि आप किस फकीरनी को घर उठा लाए हैं। तो मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में समझाता हूँ, पहले इसे नए कपड़े दो और नहला दहला कर इसके कपड़े तब्दील करवाओ, तुमसे कुछ बातें करनी हैं। दोस्तों, जब वो नहाकर पहली बेगम मेरे सामने आई जिसे मैंने आज तक नहीं छुआ था, वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके होंठ कांप रहे थे। वो मुझे देखना चाहती थी मगर उसकी आंखें झुकी हुई थी। मैं खुद ही देखने लगा और कहने लगा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी पाक दामनी की गवाही देता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उन सब के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। वो फिर से जमीन पर बैठ के फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे सहारा दिया और अपने कमरे तक ले आया और उसे कहने लगा, तुम वाकई पागल हो। सब सच ही तो कहते हैं, इश्क में आदमी पागल हो जाता है। जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा था तो पूरे 4 घंटे तक हम एक होटल में ठहरे रहे थे। अगर तुम चाहती तो मुझे सब कुछ सच बता सकती थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताना मुनासिब ही नहीं समझा। दोस्तों, ये कहते हुए फिर से रो दी। मैं आपको बताती भी तो क्या बताती। मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपके साथ बेवफाई की थी, मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी थी। दोस्तों, उसके बाद मैंने अपनी दूसरी बेगम को भी सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो भी एक अच्छी औरत थी, उसने उसे कबूल कर लिया। इस तरह वो दोनों बीवियां मेरे साथ हंसी खुशी रहने लगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। शुक्रिया।